A very good afternoon to you all. I, Professor Sangeeta Arora, IQAC Coordinator, extend a cordial welcome to all of you to this selection committee meeting convened for considering the promotion of Dr. Anju Arya, Associate Professor, Department of Political Science, to the post of Professor in accordance with UGC regulations. We are thankful to all honorable members for sparing their valuable time and joining us for this important academic venture. At the outset, I would like to courteously acknowledge the presence and guidance of our respected principal, Professor Sushma Yadav, Madam, whose academic leadership, vision, and constant support play a crucial role in ensuring quality and excellence in our institution. With your kind permission, I would now like to formally introduce the esteemed members of the selection committee present today. It is my privilege to introduce the director's nominee for today's meeting. We are honored to have with us Professor Shifali Singh, Principal, Ramabai Government Girls College, Akbarpur, Ambedkar Nagar, a distinguished educator and administrator having vast experience in higher education governance. We are grateful for your valuable time and insightful presence, which greatly enriches the deliberations of this committee. I am highly elated to introduce Professor Rajesh Prakash Sir, RHEO, having extensive experience of academic monitoring. His presence adds credibility and balance to the proceedings. Thankful for your continued support and constructive inputs in maintaining academic rigor. I take this opportunity to warmly welcome and introduce the nominee of the Honorable Vice Chancellor, Professor Subhash, Head Department of Chemistry, DS College, Aligarh. He is a scholar of high repute and academic integrity. We sincerely appreciate your guidance and valuable perspectives in the promotion process. It is an honor to introduce our subject experts for today's meeting, Professor Sanjay Gupta, Head Department of Political Science, Lucknow University, Lucknow, and Professor Lakshmina Bharti from Dr. Bhimrao Ambedkar Government Girls PG College, Fatehpur. Both experts are eminent scholars in their respective discipline with rich teaching, research, and academic evaluation experience. Their scholarly insights and unbiased assessment are invaluable in ensuring a fair, transparent, and merit based evaluation of the candidate. We are grateful for your esteemed presence and guidance. On behalf of the institution and the IQAC, I extend my sincere gratitude to all the honorable members of the selection committee for graciously accepting our invitation and contributing time, expertise, wisdom to the important academic process. The candidate under consideration today, Dr. Anju, is presently serving as Associate Professor in the Department of Political Science. Her application for promotion to the post of professor has been duly screened and she has been found eligible as per UGC guidelines. Her academic credentials, teaching experience, research publications, extension activities, and service record has been placed before the Honorable Committee for kind evaluation. With the permission of the Chair and our respected Principal Madam, I now request Dr. Anju
to kindly present her academic journey, research contributions, teaching learning initiatives, and other professional achievements before the selection committee. Dr. Anju, you may proceed with your presentation. Dr. Anju. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं 5-6 स्लाइड के माध्यम से आप सभी के सामने अपने 15 साल की जर्नी को प्रस्तुत करना चाहेंगे। आप सभी से परमिशन लेते हैं। सबसे पहले मैं एकेडमिक लेवल 13A से 14A के लिए इस एप्लीकेशन को मैंने प्रस्तुत किया है, जिसमें हाई स्कूल मेरा 1999 में हुआ है और इंटरमीडिएट 2001 में, ग्रेजुएशन 2004 में कंप्लीट किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैडम 2006 में कंप्लीट किया है। हाई स्कूल और इंटर से पहले की मैडम मेरी जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन है वो कानपुर से कंप्लीट हुई है। हाई स्कूल, इंटर, मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैडम। हेलो, अच्छा विजय, ये जोड़ नहीं पा रहे हैं सुभाष चौधरी जी, क्या चक्कर है? इनको जोड़ो तुम कैसे भी। मेरा सहारनपुर से कंप्लीट हुआ है। एमए करते हुए मैडम यूजीसी नेट के माध्यम से 2005, 2006 और 2007 को एक ओरिएंटेशन की जरूरत होगी और एक रिफ्रेशर की। तो मैडम मेरा ओवरऑल इसमें एक ओरिएंटेशन है मैडम, टोटल 5 रिफ्रेशर किए हैं मैडम मैंने। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मेरा एक है और वर्कशॉप जो है वो मैंने 3 किए हैं। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक किया है मैडम वो मैंने एएमयू अलीगढ़ से किया है। रिफ्रेशर कोर्स जो मैडम मैंने 5 किए हैं, इसमें से 3 रिफ्रेशर कोर्स मेरे एएमयू से ही हैं और एक कोर्स मैडम मेरा जोधपुर से मैंने किया है और एक मैडम मेरा ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स रहा, वो भी मैंने एएमयू से ही किया है। हो गया? शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मैंने हो गया? जबलपुर से किया है मैडम और 3 मेरी वर्कशॉप अच्छा, किए हैं आवाज मैंने नहीं आ रही, रिसर्च तो आपके मैथोलॉजी उसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं के है? रिगार्डिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी जो हो रहा मैडम है? 26/5/2010 आवाज की नहीं आ थी, रही तो है उनके उसमें पे, क्यों? पहला ग्रेड जो मेरा लगा है मोबाइल पे जोड़ रहे हैं वो जो। 26/5/2014 को हुई है। हाँ, नेटवर्क नहीं चल रहा, बोल। आप देख लो नेटवर्क, आप जहाँ बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। मैडम मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, आ रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू। किसको नहीं आ रही? ओके मैम, ओके मैम। किसको नहीं आ रही? पहला ग्रेड मैडम मेरा अच्छा, 26/5/2014 में लगा। दूसरा ग्रेड लेवल 11 से 12 का मैडम 26/5/2019 में कंप्लीट हुआ था और एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 12 से जो 13A में पहुंचा वो 26/5/2022 को कंप्लीट हुआ था और 26/5/2025 से मेरा प्रोफेसरशिप का ग्रेड ड्यू है। और उसके बाद जो मुझे एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए थी 3 साल के अंदर मैम, वो मेरे को एक पीएचडी चाहिए थी जो नेसेसरी थी पीएचडी। मिनिमम एपीआई स्कोर 110 चाहिए था मैम और 10 रिसर्च पेपर चाहिए थे। तो उसमें पूरे ओवरऑल करियर में मेरे 18 रिसर्च पेपर हैं और असेसमेंट टाइमिंग में 10 रिसर्च पेपर हैं। बुक मेरी पूरी 3 छप चुकी हैं, 3 कंप्लीट हैं जिसमें असेसमेंट टाइमिंग की हैं। चैप्टर ओवरऑल 3 है, असेसमेंट टाइमिंग का एक चैप्टर है और नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस जो है 15 सालों में 44 मैडम किए हैं प्रेजेंटेशन, जिसमें असेसमेंट टाइमिंग के 16 हैं। एपीआई स्कोर मैडम जो रिसर्च पेपर और से बनना था वो मेरा 105 बना है। बुक से मैडम मुझे 8 नंबर मिले हैं, एक बुक के नंबर नहीं मिले हैं मैडम मुझे, तो मैंने एक के जो मिले हैं वही लिखे हैं। चैप्टर से 5 नंबर मिले हैं और हमारे सेमिनार कॉन्फ्रेंस से 47 नंबर मिले हैं। तो कैपिंग होने के बाद मैडम 151 नंबर टोटल एपीआई स्कोर हुआ है और विदाउट कैपिंग 165 हुआ है। आप लोगों से विनती है कि मेरे सब चीज को देखते हुए आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करें। थैंक यू मैम। Thank you, Dr. Anju, for your comprehensive and well-articulated presentation. I now very courteously invite our venerable subject experts, Professor Sanjay Gupta sir and Professor Lakshmina Bharti madam, to kindly share their valuable observations and academic assessment. Professor Sanjay Gupta sir, please. Yes, madam.
नहीं, आपने जो अभी डिस्प्ले किया, कैन यू हियर मी मैडम? यस आपको सर। हमारी यस सर, आवाज? यस सर। यस यस अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक आ है, रही अभी है, आ मैंने रही देखा मैडम का प्रेजेंटेशन देखा, काफी इम्प्रेसिव है। काफी, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ऑन आवर पार्ट, और जितना आपको स्कोर चाहिए, थैंक यू यू सर। हैव मच मोर देन दैट स्कोर। और बस एक चीज जानकारी करना था, कौन से मैडम यूजीसी लिस्टेड जर्नल में आपके पब्लिकेशन है? कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम? सर इसमें से अंजू। 2-3 हैं जो यूजीसी, जी मैम, जी मैम, बता रहे हूँ सर। 2-3 है इसमें जो बताइए। यूजीसी केयर हाँ, लिस्टेड हैं। एक तो सर रीवा पब्लिकेशन वाला है, और सर जो ये यहाँ से पब्लिश हुआ है, रेलिवेंट रिसर्च है सर, शोध ज्ञानंतिका करके सर, एक मेरठ से निकला है, वो है सर। और बाकी अच्छा, और सर जो आपका? है वो यूजीसी लिस्टेड तो है, लेकिन सर वो पहले यूजीसी लिस्टेड रहे थे, अच्छा अच्छा, उसके हाँ बाद हाँ, जो 3-4 साल का उनका कोरम होता है, उसके बाद फिर शायद वो हट गए होंगे उस यूजीसी लिस्टेड से। लेकिन सब सर वो सभी पीयर रिव्यूड और जी रेफर्ड जर्नल हैं सर। ठीक। अब तो बिल्कुल ही यूजीसी केयर लिस्ट खत्म हो गया है ना, तो कोई जी ऐसी जी बात जी। नहीं है। हाँ ना, अच्छा, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है? आपका क्या विशेष सर ये, एरिया? हाँ जी। सर मैं इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पेपर है जी वो, वैसे तो सर जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो हमने एमए में जो 4 पेपर, खुद जब एमए किए थे तो जो 4 पेपर किए थे उसमें से ही एक रहता है सर। लेकिन वहां पर जी चूंकि स्पेशल जैसे आशियान है या क्या कहते हैं, इस तरीके के वो रहते हैं, वो नहीं था। जी, तो उसी में से सर हम लोग एक इंटरनेशनल रिलेशन वाला पेपर लगा लेते हैं। ठीक। तो आपके अधिकांश जो पब्लिकेशन है, दैट परटेन्स टू जी सर। आईआर, जी आईआर पर है? जी जी, सर। जी सर, जी नहीं, सर, जी सर। आईआर पर है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस। जी और आपकी जी जी किताबें जी। किस 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 विषय पर है? किताबें मतलब क्या एरिया है? जी जी सर, एक किताब तो सर बीए अभी जो एनईपी आया था, तो उसमें बीए फर्स्ट 3rd सेमेस्टर की थी, साहित्य भवन राखी पब्लिकेशन से पब्लिश है सर। और एक सर ओपस से पब्लिश्ड है, जो संविधान पे लिखी है मैंने, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वो भी सर एनईपी में एजुकेशन के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके प्रैक्टिकल में लगा हुआ है सर ये पेपर। तो एजुकेशन वाली मैडम है, उनके साथ मिलके लिखी थी सर ये किताब मैंने। और एक किताब जी सर हम लोगों ने अभी सेमिनार कराया था ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, तो जी, मेरा और मधु जी के दोनों लोगों के उससे है वो किताब। दोनों लोग संपादक हैं उसमें। ठीक है। वो 3 किताबें हैं सर। ठीक। अब मैडम, आप जब प्रोफेसर हो जाएंगी तब आगे की क्या है आपका विचार है? फ्यूचर सर एकेडमिक अब जर्नी सोचा है आपकी कुछ, कैसी? जी सर एमए की एक अच्छी सी बुक निकालनी है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सर, पीजी वाले। और 1-2 बार मेरे पास पेपर भी बनने के लिए आया सर इंटरनेशनल रिलेशन का। तो थोड़ा सा यहाँ पर वो मॉडल है, नोट्स हैं। हालांकि पीजी लेवल पर सर बिल्कुल एक्यूरेट सिलेबस के हिसाब से किताब नहीं बनती हैं कहीं पर भी। लेकिन बहुत जी सारे स्टूडेंट चाहते थे, कुछ टीचर्स हैं सर, राजकीय कॉलेज से एक अनीता मैडम है, बागला कॉलेज से सर हैं, तो हम लोगों की थोड़ा सा इस चीज पे चर्चा चल रही है कि जैसे ही कुछ इन सब चीजों से फ्री होते हैं तो एक अच्छी सी पीजी लेवल की और नेट लेवल की बुक हाँ, आवाज चली गई है। कहीं कोई पद जी, लेना है, ऐसा नहीं है सर। नहीं ठीक है, आप खूब अच्छा काम करें और अपने विषय को आगे जी सर, बढ़ाएं। जी सर, और बच्चों को, जी सर। जैसे हम लोग कहते हैं एनईपी 2020 में स्टूडेंट सेंट्रिक पूरा जी उसमें सिस्टम बनाया गया है। तो बच्चों को ध्यान में रखते बिल्कुल हुए, बिल्कुल। आपके परिवेश में जो बच्चे हैं वहां पर, उनको जैसी जी 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 रिक्वायरमेंट सर। हो, और आप जी थोड़ा सा सर्वे भी कर लीजिएगा आईआर पे, कौन सी किताब है जी कौन सी नहीं है, उस हिसाब से। तो बिल्कुल। ठीक है, मेरे हिसाब जी से जी मैडम, प्रिंसिपल मैडम, मेरे हिसाब से मैडम का कैंडिडेचर ठीक है। और गिवन हर एक्सपीरियंस एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पब्लिकेशन, सब कुछ सही है, तो मेरी तरफ से, बिल्कुल तरफ से, मेरी तरफ से स्वीकार्य है, मैडम को प्रमोट किया जाए आगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। है हाँ। Thank you so much, जी sir, जी है। and congratulations, Anju. Now I थैंक यू मैडम। invite Professor Lakshmina Bharti ma'am to give her views, her सबसे एंड पहले recommendations. रिकमेंडेशंस। मैम सभी को मेरा प्रणाम, सभी को। और
मैंने अंजू जी का फॉर्म चेक किया था, देखा था समर्थ पोर्टल पे, तो सारी चीजें मुझे सही लगी और मेरी तरफ से भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए पद के लिए, प्रोफेसर पदनाम के लिए। मेरी तरफ से भी पूरी सहमति है सारी चीज सही पाए जाने पे। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको कि आप जल्दी से थैंक यू जल्दी मैम। इस पदनाम को सुशोभित करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. And once again, congratulations to Dr. Anju. Now she is going to soon become a professor. With gratitude, I express my sincere thanks to both the subject experts for their valuable feedback and insightful observations. I now, with due regards, invite highly reputed and dignified Professor Subhash sir to give his assessment. Professor Subhash sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर की, वॉइस नहीं आ रही है सर की। सर फोन करवाइए उनको, आवाज नहीं आ रही है। विजय, इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है देखना। आवाज नहीं आ रही है, हमारी तरफ से तो नहीं कोई इशू है। उनके पर इसमें आवाज नहीं आ रही सुभाष सर से। नहीं आंटी सर, इसकी आवाज नहीं आ रही है मेरे कर रखा है। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज हाँ मेरी? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही हाँ सर, आ रही है। हाँ है। ठीक आगे है, सर, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने पहले अनम्यूट कर रखा था। मैं ये कहना चाह रहा था मैडम, मैं तो कोई सब्जेक्ट का हूँ नहीं, पॉलिटिकल साइंस का, पर जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी है अब तक जितने प्रमोशन हमने किए हैं या हम लोगों का प्रमोशन हुआ, उस सब में भी यही रिक्वायरमेंट थी लगभग। और इस टाइम तक इन्होंने बुक्स भी पब्लिश कर दी, काफी सारे पेपर और सेमिनार और जो कॉन्फ्रेंस है उनका तो ढेर लगा के फेंक दिया अंजू ने। ये बहुत ही अच्छा नहीं काम सर, ये किया तो है पूरा 15 साल का है। हाँ, नहीं हमने तो किसी के 10 देखे हैं, किसी के 15 देखे हैं कॉन्फ्रेंस और सेमिनार। आपने तो 44 बताए ना, जी तो 44 तो बहुत हाँ ज्यादा सर, होते हैं। स्टार्टिंग के सर 4 सालों चलिए में वो बहुत है। स्टार्टिंग से हो, 2010 से लेके वो स्टार्टिंग से हो 2014 या तक बहुत। इसके या पीरियड के हो, 5 साल से 8 साल वाले हो, मगर 44 बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे जी भी जी आपके सर। आर्ट्स में तो खैर ज्यादा ही होती है कॉन्फ्रेंस, हमारे साइंस में तो नंबर जी इनका जी कम रहता है। पर जब जी जी रिक्वायर्ड सर। अमाउंट सब चीजें अवेलेबल हैं, तो मेरी तरफ हम्म। से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थैंक यू रिकमेंड सर, थैंक यू। for the post of professor on the basis of college IQAC. Thank we you. are थैंक यू very सर, much थैंक grateful यू। to you, sir, for your positive remarks and insightful observations. Congratulations. You have crossed Thank you, one madam. more थैंक यू step, सर, Anju. I थैंक यू मैम। now very courteously invite esteemed Professor Rajesh Prakash sir for his valuable comments and recommendations. Professor Rajesh Prakash sir. हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। Namaskar. मैंने जो है अभी मैडम ने जो एक्सप्लेन किया है वो भी सुना है, और दूसरी बात है एक्सपर्ट्स के व्यूज भी मैंने जो है सुने हुए हैं। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और कैपिंग के बाद भी अच्छी मार्किंग है इनकी जो IQS। लेकिन मैं बस इतना चाहूंगा कि जो रिसर्च डेवलपमेंट पे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे भी इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहिए। थोड़ा सा इस तरीके के प्रपोजल हम लोग बार बार जो है वो करते हैं, तो इसको भविष्य में रिसर्च पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि प्रोफेसरशिप में ये चीज भी काउंट होती है। तो बाकी जी सब सर। चीज एवरीथिंग इज ओके। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ प्रोफेसरशिप के लिए, और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
Thank you, sir. We are very much obliged to you, sir, for your evaluation and reviews. Again, I would like to congratulate Anju. Thank you, ma'am. She is Thank you, ma'am. moving Thank ahead you. step by step. Eventually, I solicit with gratitude Director Nominee Madam Professor Shefali Singh for her observations, insights, and recommendation. Professor Shefali Singh, Madam. थैंक यू मैडम। डॉक्टर आर्या, आपकी एकेडमिक जर्नी बहुत ही शानदार रही है। जो भी आपने Thank काम you, ma'am. किए हैं उसमें बहुत ही अच्छे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप रेफरेंस के लिए कुछ बुक लिखें। मैडम जी, जी, प्रिंसिपल मैम। ने सब कुछ आपसे काम कराए होंगे, तो मैडम ज्यादा अच्छी जी, तरह जी, देख रही हैं आपको, और हम लोग जी, मैम। दूर से देख रहे हैं। तो मैडम को करिकुलर जी, एक्टिविटीज में भी आपका पार्टिसिपेशन जरूर रहा होगा। इसके साथ इतने सारे जी, काम जी, करना निश्चित रूप से आपके इस तरफ के रुझान को दिखा रहा है। तो मुझे लगता है आपको जी, मैम। कुछ रेफरेंस बुक्स के लिए भी काम करना चाहिए, ताकि आप पीजी भी पढ़ा रहे हैं। नहीं, नहीं मैम, यहाँ पीजी पीजी नहीं है, पीजी नहीं है। यूजी जी, की ही क्लासेस तो है मैम कितने यहाँ पर। हैं फैकल्टी मेंबर्स, कितने हैं आपके? दो? आप लोग कितने हैं? 2 लोग हैं। अकेली हैं या पीजी कई दो लोग? 2 लोग हैं मैम। 2 है मैम, 2 है। 2 के एक साथ हम है यूजी और मैम, एक पीजी? हमारे पीजी नहीं है नहीं, मैडम, मैं पूछ पीजी रही नहीं है हूँ, 2 यहाँ के पर, साथ यूजी। यूजी और पीजी दोनों आप लोग लेते होंगे क्लासेस? मैडम पीजी नहीं है हमारे महाविद्यालय में, केवल यूजी अच्छा, है। यूजी है। यूजी जी, है। जी, जी, तो पीजी के जी। लिए बुक्स लिखिए आप। फिर आप कह रही हैं जैसा पेपर्स आ रहे हैं, तो क्या हाँ, पीजी ना पढ़ाने वाले को भी पेपर्स मिलते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली पता नहीं है तो कोई डिनाई करता होगा, ये तो मुझे नहीं पता मैम। मेरे पास आते हैं तो मैं यूनिवर्सिटी कॉल करके कह देते हैं, तो कहते हैं नहीं मैडम कोई नहीं, वो तो हम बनाते हैं मैडम। 3 बार आ चुके हैं पीजी लेवल पे पेपर बनाने के लिए, और अच्छा भी लगता है मैम। और मेरा जो स्टूडेंट है मैडम यूजी नहीं, वाले, ये वो जो तो पीजी में अक्सर एडमिशन लेते हैं, ये तो तो वो काम है, संपर्क में तो रहते हैं। हम्म तो फिर आप उस पे काम कीजिए, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी आप जो डिजिटल लाइब्रेरीज हमारी हैं उसमें भी आप कीजिए। और सभी एक्सपर्ट्स को बिल्कुल बहुत धन्यवाद। रियो सर को धन्यवाद, वीसी नॉमिनी सर को धन्यवाद, और आपको सभी ने अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, सबने रेकमेंड किया है। मेरी तरफ से भी जी। आपके लिए प्रोफेसर पदनाम के लिए रेकमेंड किया जा रहा है, और थैंक यू मुझे मैम, लगता है कि इसमें थैंक यू कोई मैम। भी बाधा नहीं है। सबको आपको थैंक शुभकामना यू मैम। दी जाए, बधाई दी जाए कि आप और अच्छा करें आगे, और अपने जो जी, एकेडमिक परस्यूट है उसको और आगे बढ़ाएं। बधाई। थैंक यू मैम, With थैंक यू वेरी मच। gratitude, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संगीता अरोरा, प्रोफेसर संगीता अरोरा को बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इनको जो भी इनका इवेल्युएशन रहा होगा फर्स्ट लेवल पे आपकी ओर से हुआ होगा। प्रिंसिपल मैडम को बधाई, क्योंकि उन्होंने वो मौका दिया टीचर्स को। अपने टीचर्स जी को मैम। एनकरेज करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैडम को बधाई, और सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। डॉक्टर आर्या को बधाई। with gratitude, I thank you, madam, for your distinguished suggestions and recommendation. Congratulations, Dr. थैंक Anju यू, and थैंक यू। would-be Professor Anju. I now very humbly and respectfully invite our Honorable Principal Madam to present her recommendation also. Principal Madam, please. आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम सभी लोग ऑनलाइन इसी प्रोफेसरशिप के रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर अंजू आर्या को अपनी तरफ से रिकमेंड करती हूँ आप लोगों के रिकमेंडेशन के बाद, और बधाई भी देती हूँ। इसके साथ थैंक यू ही मैम, मैं थैंक यू। ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे डायरेक्टर नॉमिनी प्रोफेसर शेफाली जी का विशेष तौर से धन्यवाद देती हूँ, और आभार भी प्रकट करती हूँ कि आपकी वजह से आज हमारा ये संपन्न हो पाया। क्योंकि आप थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति हमारी हो रही थी उस समय, आपके संग आप जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए आपका धन्यवाद भी देती हूँ। साथ ही मैं आरएचओ सर
जो कि बहुत ही बिजी रहते हैं, और उसके बाद भी कैसे भी वो टाइम निकाल कर हमारे संग आज जुड़े, और हमारे एक कैंडिडेट को आज प्रोफेसरशिप के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। उनका भी सर मैं हृदय से आभार आपका प्रकट करती हूँ। आज के हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय गुप्ता जी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने रिकमेंडेशन के साथ साथ बहुत ही अच्छे सुझाव भी अंजू जी के लिए दिए। आपका भी सर आभार और धन्यवाद। साथ ही मैं डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीना जी को भी आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि आप दोनों के सहयोग से ही आज हमारा ये एक हमारे कैंडिडेट जो कि प्रोफेसर के लिए योग्य पाए गए। आपका भी मैडम धन्यवाद। वीसी नॉमिनी हमारे सुभाष चौधरी जी, आपका भी सर विशेष तरह से मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आज आप यहाँ पर जुड़े और आपने अपना रिकमेंडेशन दिया। और आज अंजू को मैं खत्म